audible? अभी नहीं काम कर रहे थे ना क्लास में. Am I audible to you people? Yes, ma'am. I was talking about various functional groups absorbing differently in IR. I've already told you about what fingerprint region is. I just wanted, I've been waiting, nobody joined. Let other people also join. No, it's only three people. Let other people join too. Can I start? बारिश की वजह गर्मी की. बारिश मैं सुबह जल्दी इसलिए निकला था, मैं यहाँ पहुँच गया 8:38 पर, तभी पूरे आदमी को बहुत बढ़िया अभी वो पहली बार में बारिश में नहा कर लिया। मैं तो कई दिन तक शरीर खराब रखा। Shall I continue? Okay. So what we were talking about was key that IR can be used for unambiguous identification of things, any molecule, because the IR spectrum has uh, a fingerprint region which is very unique to the molecule. Okay, and different molecules absorb in different frequencies, which we have to remember. We have to remember at least the range
I already discussed CH stretching. I said that unsaturated CH stretches, you should expect them to be appearing above 3000, while as the saturated ones are below 3000. So saturated CH we expect in the region of 28, 29, and the aldehydic CH at 27, 28. Okay, and all unsaturated CH stretches above 3000. Example, uh, acetylenic CH 3300, SCH मैम with आप sp. स्लाइड शेयर कर रहे हो? हाँ, नहीं अभी नहीं शेयर कर रही थी बेटा. Anything unsaturated above 3000, anything below unsaturated, anything saturated below 3000. ठीक है, फिर then we discussed say aldehydic 2800, 2700, you should remember. And for CH, you should remember 2900, 2800, one for symmetric, another for asymmetric. For sp2 hybridized, you should remember 3100, and for acetylenic, you should remember 3300. Okay. I discussed hexane, benzene, and what. Now I'll talk about CC stretching. CC stretching appears somewhere between 1500 to 1600. Okay. Depending upon what molecule we are taking about. So you should remember a value of 1650. हमेशा C double bond C के लिए remember करो 1650. Okay, benzene ring में एक से ज़्यादा double bonds are conjugated to one another. So benzene always shows more than two peaks, 2 to 3 peaks between 1600 to 1400 for the presence of carbon-carbon double bonds. When the carbon-carbon double bond is conjugated to anything, maybe a carbonyl or anything, so the frequency of vibration, like frequency of absorption changes. मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है. I'm saying that C double bond C. Am I audible now? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm saying that C double bond C absorptions appear in the region of 1600. You should remember 1600 for that. And for aromatics, where you have a benzene ring more than one double bond conjugated to one another in an aromatic ring, there you should expect more than two peaks between 1600 to 1400 for CC stretching. Okay. And whenever CC is conjugated with something, it will change its frequency of absorption. But you should remember a value of 1600. For example, if you take this alkene over here, it has got C double bond C apart from CH2s. That means it has got CH stretchings, which saturated C stretchings, which we should expect between 28 to 29. You can see it here. And then we have got unsaturated CH stretch. There should be something about 3000. So you have got a peak at 3082. That means 3082 centimeter inverse. But since there is a carbon-carbon double bond also, we also see a peak at 1644. Okay. For benzene, this was your, since this has got a hybridized sp3 hybridized carbon and an H attached to it, so CH for sp3 hybridized carbon stretching is 2900, 2800. It is here. And for aromatic ring, the aromatic CH stretching is 3030. Then it has got, aromatic ring has got 3 bonds conjugated to one another. So you will always see more than 2 peaks in the region of 1600 to 1400. It's always, whenever you see an aromatic ring, you see that there's always there are 3 peaks between 1606 to 1462. You can remember 1600 to 1400. And this I want to point out is that this is a trick to identify any aromatic molecule. Whenever you see that there are these overtone bands in this region, ऊपर, तो it indicates the presence of an aromatic ring. ये याद रखना कि ये aromatic ring को पहचानने की एक trick है कि जब भी आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे overtone bands मिलेंगे, तो इसका मतलब ये molecule aromatic है. Okay.
सो हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का हमने स्ट्रेचिंग देखा 3000 के रीजन में है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो रीजन है 1600 है। ठीक है, ये आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हो गई। ठीक, फिर अब आप आ जाओ बेंडिंग वाइब्रेशंस पे। बेंडिंग भी होएगी, सी एच बेंडिंग भी होती है, वो भी आपकी सिमेट्रिक भी हो सकती है, एसिमेट्रिक भी हो सकती है। उसके लिए जो रेंज है वो 1450 का रेंज सम याद रखना। सी एच टू बेंडिंग या सी एच बेंडिंग के लिए 1450 का रेंज आप लोग याद रखिए। ये देखिए अलग अलग जो बेंडिंग्स है, सिजरिंग है, वैगिंग है, रॉकिंग है, ट्विस्टिंग है, ये तकरीबन सिर्फ इसमें रॉकिंग वाला जो है बहुत कम पे आता है, 720 पे, 720, एंड इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज यूज। जब आप 720 पे, जब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, तो 720 पे जो मिथिलीन रॉक होता है ये बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, आपको एकदम से दिख जाता है कि ये जो है ये इसमें सी एच टू बहुत सारे हैं। ऐसा जो हम लोग सिजरिंग जो है वो आपकी 1450, और ये वैगिंग और ट्विस्टिंग जो है आपकी 1250 पे होती है, और रॉक जो होता है मिथिलीन का 720 पे। ओके, सो दिस इज अ जनरल। ज़्यादातर सी एच टू और सी एच थ्री की ये पीक ओवरलैप करती है, तो हमको 450 पे एक पीक समझ लो मिलती है, और 1375 पे एक पीक मिलती है। और अगर हमारे पास जेम डाइमिथाइल, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है कि अगर आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब भी आपका जेम डाइमिथाइल होता है, आइसोप्रोपाइल होता है, आइसोप्रोपाइल में आपको हमेशा ये तो मिलेगा ही 1450 पे पीक, और एक पीक जो मिलेगी आपको, दो पीक्स मिलेंगी 1380 3070। जब आपको 1450 पे एक पीक मिल जाए स्ट्रेच के लिए और सी एच थ्री बेंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें दो सी एच थ्री होते हैं आइसोप्रोपाइल में, तो आपको 1380 1370 पे जब दो पीक्स मिलते हैं, डबलेट काइंड ऑफ चीज मिलती है, तो आपको पता चलता है कि इस मॉलिक्यूल में डाइमिथाइल जेम डाइमिथाइल है। टर्शियरी ब्यूटाइल के लिए 90 और 70, 1390 1370, और जेम डाइमिथाइल के लिए 1380 1370 डायग्नोस्टिक है। ये हम लोग याद रखते हैं जेम डाइमिथाइल का, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक है, हमको पता चल जाता है ओ इसमें लगता है जेम डाइमिथाइल है। अब मैं बेंड की बात कर रही थी, तो इसमें हम लोगों ने फिर से मैंने हेक्सेन का दिया है, ये स्टेज स्ट्रेच हम पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए बेंड जो है 1462 1381, ये बात मैंने करी थी, और 720 पे आपका रॉक होता है, CH2 रॉक होता है। ठीक, और ये हेक्सीन है, हेक्सीन में आपका CH स्ट्रेच तो है ही है, क्योंकि आपका CH2 CH स्ट्रेच सैचुरेटेड है, CH स्ट्रेच अनसैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक 1600 पे आ रही है, और बेंड जो आएगी आपको 1464 पे आएगी। ओके, और रॉक वगैरह आएगी। जब भी आपने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया या ट्रिपल, जब पहले हम लोग बेंडिंग खत्म करते हैं, ये इसमें देखिए 1462 से 760 1248 पे पीक है। ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपके इसमें एरोमेटिक सीसी ये स्ट्रेच है, ये आपका एरोमेटिक CH स्ट्रेच है। इसमें क्या होता है, जब भी आप डबल बॉन्ड डालोगे या रिंग डालोगे, डबल बॉन्ड और रिंग जो होता है प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, ये एल्कीन है, ये एरोमेटिक रिंग है, तो ये चूंकि एक ही प्लेन में होता है, बिल्कुल आपके मोबाइल की तरह, बिल्कुल प्लेन या आपकी नोटबुक की तरह, तो हाइड्रोजन जो है ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं प्लेन से, अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। वैसे ही एरोमेटिक रिंग में भी अबाउ द प्लेन बेंडिंग हो सकती है, बिलो द प्लेन बेंडिंग हो सकती है। तो ये जो है इनकी टिपिकल वैल्यूज है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के लिए, और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड के लिए। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। अगर हमको याद हो तो हम पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल सिस 1 2 है, ट्रांस 1 2 है, 1 1 है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। वैसे ही हम लोग एरोमेटिक रिंग्स में पता कर सकते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड है, पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। आप देखिए कि जो पीक्स हैं आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस की, वो अलग अलग है सब में। ठीक है, सिर्फ ये आपकी 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फिर भी ये थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड है। तो वी कैन डिफ्रेंशिएट, वी कैन
हम लोग सब्स्टिट्यूशन पैटर्न पता कर सकते हैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन से। मैं आपको ये याद करने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वैल्यूज नहीं याद करेंगे हम लोग, हमको सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपका सी एच है, सी एच जो स्ट्रेच है, सी एच आपके 4 है किस्म के होते हैं। एक तो एल्डिहाइडिक होता है, वो 2700 2800 के वैल्यू याद रखो उसके लिए। फिर आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन लगा होता है सी एच होता है, वो 2800 2900 पे होता है। और जो आपके अनसैचुरेटेड सी एच स्ट्रेचेस होती हैं वो सारी 3000 से अबव होती हैं। उसमें आप रखो कि 3000 से 3100 3200 पे आप लोग आपके ओलिफिनिक प्रोटॉन्स या एरोमेटिक प्रोटॉन्स आते हैं, और जो एसिटिलीनिक प्रोटॉन्स होते हैं वो 33 पे आते हैं। ठीक है, ये सी एच स्ट्रेच हो गया। फिर मैंने आप लोगों को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेच बोला, मैंने कहा 1650 का वैल्यू याद रखो। ओके, और एरोमेटिक में याद रखो कि एरोमेटिक रिंग्स में 3 से ज़्यादा बैंड्स होते हैं बिटवीन 1650 टू 1400। ओके, फिर मैंने आप लोगों को बेंडिंग वाइब्रेशंस बताई। सी सी ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, बिल्कुल इस रीजन में, सी सी ट्रिपल बॉन्ड के रीजन में कोई भी बैंड और नहीं आता। इसमें सिर्फ ये बॉन्ड जो है ये 2200 याद रखिए इसके लिए। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं आता, इसको डिटेक्ट करना बहुत आसान है। ओके, so this is your triple bond, and so I've made a general, so इतना तो आप लोगों को। फिर आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस मैंने कही। नॉर्मल बेंडिंग वाइब्रेशन जो है सी एच की या CH2 की, वो आपको मैंने बताया कि 1450 का एक पीक याद रखिए, और फिर 1370 की एक पीक याद रखिए। अगर जेम डाइमिथाइल हो गए 1370 1380 पे 2 पीक्स होंगी। आइसोब्यूटाइल होगा तो 1380 1390 पे एक पीक होगी। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो प्लानर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या एरोमेटिक रिंग्स विद प्लानर मॉलिक्यूल्स, उनमें आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस भी होती हैं, जो कि सब्स्टिट्यूशन पैटर्न्स पर डिपेंड करती है, और हम सब्स्टिट्यूशन पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशनल वैल्यूज। ओके, सो दिस वाज अ समरी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में ही पीक नजर आते हैं। अब हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग OH स्ट्रेच को देखेंगे। O और H जो है ये भी यही C और H वाले बॉन्ड के रीजन में आता है, OH। ओके, अगर आपके पास एक फ्री एल्कोहलिक ग्रुप है जिसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो आपको एक शार्प प्री पीक 3600 पे दिखाई देगी। लेकिन आपको पता है अल्कोहल है या एसिड्स में जो OH होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो पीक जो है ब्रॉडन हो जाती है और लोअर वैल्यूज पे आ जाती हैं। रफली आपको 3300 पे पीक नज़र आती है, और कभी कभी तो इतना हो जाता है, इतनी ब्रॉडनिंग हो जाती है एसिड्स में कि आपका जो CH का रीजन होता है वो इस OH के रीजन पे ओवरलैप कर लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, इस पे ये H है। ये OH हमारा वाइब्रेट कर रहा था नॉर्मली, लेकिन क्या हो गया कि इस H को यहाँ ऑक्सीजन भी खींच रहा है। ठीक है, इस ऑक्सीजन को यह हाइड्रोजन भी खींचेगा, तो क्या हो जाता है कि ये बॉन्ड वीक हो जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड वीक हो जाने से क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन जो है या वेव नंबर जो है बड़े नंबर्स की तरफ जाता है। दैट इज वाई वी सी कि 36 से नीचे की तरफ, दैट इज 3300 और 3100 की तरफ पीक जो है मूव हो जाती है। हम इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिसरप्ट कर सकते हैं कोई ऐसा सॉल्वेंट डाल के जिसमें हाइड्रोजन ना हो। एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर डालेंगे तो ये जो है एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है आपके अल्कोहल को या एसिड मॉलिक्यूल को अलग थलग कर देगा, और फिर ये किसी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा, और आपको जो है फ्री हाइड्रोक्सिल की पीक आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोक्सिल की नहीं आएगी। ये देखिए मैंने एक्चुअल एग्जाम्पल लिया है, ये मैंने ब्यूटानॉल लिया है, 1 ब्यूटानॉल। ओके, 1 ब्यूटानॉल में ये देखिए प्योर लिक्विड जिसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपको पीक जो है ब्रॉड दिख रही है,
और ये तकरीबन ये देखिए ये अगर आपका ये हो गया 30, ये 3000, ये हो गया 32, 34 और ये हो गया 36। ये आपका 36 से लेके ये यहाँ पे 34 तक की पीक ब्रॉडन हो गई है, ठीक है। 3400 3300 तक पीक आ गई। जब आप क्या करते हो, इसको ब्यूटेनॉल को डाइल्यूट कर देते हो किसी एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ, तो आपका जो OH है वो फ्री होने लगता है। जब फ्री होने लगता है तो आपको फ्री हाइड्रोक्सिल की शार्प पीक नज़र आती है और ये कम होती जाती है। और जब आप बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन डालोगे जहाँ पे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो और से एप्रोटिक सॉल्वेंट, कोई भी एप्रोटिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कोई भी एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। आपको एक 3600 पे एक शार्प पीक दिखाई देगी फ्री हाइड्रोक्सिल की। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। ये देखिए OH की पीक जो है ना, ये आप कभी भी मिस नहीं कर सकते हो। एक ब्रॉड पीक होती है 3300 की रीजन में, सो विच यू कैन नॉट मिस इट ऑल। इसमें CHs होंगे तो 2829 पे पीक है। फिर आपके बेंडिंग होएगी 1453 पे। फिर इसमें चूंकि CO बॉन्ड आ गए, CO के लिए आप 1000 का वैल्यू याद रखिए। 1000 के जगह पे या 1000 के रेंज में आपको एक पीक मिलेगी। सो दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल। See, this is an acid. Acid has got an OH which is very extensively hydrogen bonded. तो इतना हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये पूरा हम्प जो नजर आता है, ये पूरा कैमल का हम्प नजर आता है, उल्टा हम्प कह सकते हो। ये पूरा आपका CH region. So carbon acids also have a CO, so you'll find a peak in the region of 1000. Okay. NH भी इसी जगह आता है, OH, CH और NH इसी रीजन में आते हैं, ठीक है। तो NH का भी जो होता है वो रीजन होता है 3300 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके। और अगर आपका प्राइमरी अमीन होगा, उसमें 2 NH हैं तो 2 पीक्स आएंगी, एक सिमेट्रिकल स्ट्रेच की और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेच की। अगर सेकेंडरी अमीन होएगा, सेकेंडरी अमीन का मतलब होता है एक ही NH, ओके, तो 1 पीक आएगी। और टर्शियरी अमीन होगा तो कोई पीक नहीं आएगी क्योंकि NH बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। ये मैंने ब्यूटानमीन लिया है, 1 ब्यूटानमीन, सो इट इज प्राइमरी अमीन, सो यू विल हैव 2 पीक्स, one for symmetric stretch and another for asymmetric stretch for NH. So you see a peak at 3299 and 3369. These are the peaks due to the presence of NH. These are the other peaks, normal peaks, because of the presence of CH3s and CH2s. Okay, you've got CH3 CH2 bend, you've got CH3 CH2 stretch. Then you have taken a primary amine again, but an aromatic one. Here you see, since this is aromatic, you see peak at 3036 due to the aromatic CH. Since it has got a toluene, which is sp3 hybridized, it will also have peak 28 2900. These are your CH peaks. Now CC peaks, this is an aromatic, this will also tell us. Then you will have more than one peak between 1600 to 1400 due to the presence of carbon-carbon double bonds. Then we have this is your CH bend, and then you have your outer plane bending vibrations. Okay. And rest of the peaks are the same. This is your tertiary amine. Now we don't have any NH at all, so you will not see any peak at all in this region between 3000 to 3500. Okay. I've already told you that carbon-carbon triple bond and carbon-nitrogen triple bond are the only two bonds which are found in this region. It is between 2000 to 2500, so it's very easy to locate them. See, this is your nitrile, it is at 2249. This is your hexyne, this is again 2128. I'm sending you this PPT, okay? And just go through it. If you have any issues, I'll get back to you. Fine? Yes, ma'am. मैम इससे पहले वाली भी भेज देना, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। भेज तो दी थी, तुम कहाँ हो?
आईआर वाली भेज दी मैम। इससे पहले आपने एक पढ़ाई थी ना, वो वाली दे दीजिएगा। यूवी की एक और पढ़ाई थी आपने। यूवी की तो सारी भेज दी बेटा। नो मैम। सॉरी मैम, आईआर की पहली वाली से। मैंने आपको डिग्री डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स पढ़ाया था, वो नहीं भेजी है। बाकी यूवी की सारी भेजी है, और आईआर की पीछे वाली तो मैम मैंने भेज दी है। इंडेक्स जिस दिन आपने बताया था ना, इंडेक्स की एक बताई थी स्लाइड्स, फिर उसके वही बाद तो बोल रही हूँ, आईआर वही का नहीं भेजा पढ़ाया है। था। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स ना, यस डबल मैम। बॉन्ड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी ना। यस मैम, और उसके बाद वाली। उसके बाद वाली तो आज ही की है ना, खत्म हो गई जो। नो मैम, एक और है बीच में, जिसमें और मतलब इलेक्ट्रोमैग वो है, जिसमें मतलब बेसिक इसमें बताया था कि आईआर में होता क्या है और कहाँ बेटा वो कहाँ तो यूज भेज दी होता है। मेरी मैंने। मैम आपने अभी तक एक ही स्लाइड भेजी है हमें, वो है यूवी एक वाली। स्लाइड। एक बार आप इसमें चेक करिए, ग्रुप में ही। देखो, हम्म देखो आप लोगों को आईआर इंडेक्स ऑफ हाइड्रो, आपको आईआर का इंट्रो भी भेजा है ना मैंने। मैम एक बार ग्रुप में ही चेक करिए आप। नहीं 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 भेजे, नहीं भेजे। मैं आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि मैंने भेज दिया, सॉरी। हाँ जी मैम। ठीक है, मैं भेज दे रही हूँ, वो भी भेज दे। हाँ अभी भेज दे रही हूँ सो दैट। मैम, हाँ जी बेटा। मैम जो सेशनल है वो किस टाइप से होगा? गूगल जैसे गूगल फॉर्म में होता है, और एक आप क्वेश्चंस भेज दोगे और उसके आंसर्स हम आपको सेंड कर देंगे, तो किसी भी किस टाइप से? तरीके से हो, क्या इश्यू? किसी भी फॉर्म में हो, आपको क्या करना बेटा? मैम एक बार, अगर वन वर्ड में है तो उसको उसके तरीके से ज़्यादा मतलब पढ़ेंगे, और फिर वैसे है तो उसके तरीके से पढ़ेंगे, इस तरह। आप पूरा पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए यस बेटा। मैम। यस मैम। चाहे कोई भी तरीके से हो, यू शुड बी एबल टू आंसर। ठीक है, ओके। यस मैम। सो I've taken your attendance and I'll send you the notes. मैम जो आज पढ़ाया है वो तो नहीं आएगा ना पेपर में और सेशनल में? नहीं बेटा, आईआर नहीं आएगा, सिर्फ यूवी आएगा। ये आप लोग 8 ही लोग हो ना आज? अटेंडेंस चेक कर लो अपनी। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है जी, ठीक है। और क्या था? हम्म, fine. मैंने कब बोला है, टेस्ट कब बोला है? 10th को मैम। 10th September. 10th को, 8th को मैं वापस आऊंगी, ठीक है। 10th को मैंने बोला है। मैंने आप लोगों का अटेंडेंस ले लिया है। मैम आएंगे यहाँ, चलो अब फटाफट यहाँ से। Bye bye.